Assalamualaikum students and good morning to all of you. I hope you all are doing fine and studying at home. This is a new video session of Sir Sayyid Children's Academy. I'm Ms. Anam Shajat and I'm going to take your English literature and English language classes. Let's begin our class. Before moving forward in our lecture, make sure you have your folk tales from around the world book in your hands so you can read the chapter with me. As you all know, today is our first lecture, and in this lecture we are going to read and understand Rip Van Winkle Part 2. Before starting Rip Van Winkle Part 2, let's take a short review of Rip Van Winkle Part 1. Rip Van Winkle was a farmer who lived in a little house with his wife and 2 children. He was a cheerful, friendly man and always happy to help his friends and neighbors. He spent a lot of time helping others but did not like working on his own farm, which made his wife very angry. Rip had a dog called Wolf, who is always with Rip. They often go to the inn. Rip's wife went to the inn and asked Rip to come home, but he did not want to do any work. He went out hunting with Wolf. रिप वैन विंकल एक फार्मर था जो अपने लिटिल हाउस में अपनी वाइफ और 2 चिल्ड्रन के साथ रहता था। वो बहुत फ्रेंडली भी था और उसे अपने फ्रेंड्स और अपने नेबर्स की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता था। वो दूसरों की तो हेल्प करता था लेकिन ख़ुद अपने फार्म पर कोई भी काम नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी वाइफ उससे अक्सर गुस्सा रहती थी। रिप के पास एक डॉग था जिसका नेम था वुल्फ, जो हमेशा रिप के साथ रहता था। वो दोनों अक्सर इन जाया करते थे। व्हाट इज़ इन? इन इज़ अ प्लेस वेयर अ पर्सन गो टू ईट एंड ड्रिंक। रिप की वाइफ भी उसे ढूंढते हुए इन जाती हैं और रिप से कहती है कि घर आकर कुछ काम करो, लेकिन रिप, जिसे काम करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, वो घर जाने के बजाय वुल्फ के साथ हंटिंग करने यानी शिकार करने चला जाता है। We are done with the review of Rip Van Winkle Part 1. So now we are going to read our today's topic, which is Rip Van Winkle Part 2. Open page number 15 of your folktales book. I am going to read and explain page number 15. A stranger. Stranger means अजनबी। ऐसे पर्सन को हम स्ट्रेंजर कहते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं। One afternoon, Rip and Wolf were hunting in the mountains. There were rabbits in Rip's bag. Rip was tired. He sat down on a little green hill under some trees. On one side, he could see the Hudson River far below. On the other side was a deep, dark valley full of rocks. Rip looked up at the sun. "It will be dark soon, Wolf," he said sadly. "We must go home." एक आफ्टरनून जब रिप और वुल्फ माउंटेन्स में हंटिंग करने के लिए जाते हैं, देयर वर रैबिट्स इन रिप्स बैग। रिप के बैग में कुछ रैबिट्स होते हैं। वो एक ग्रीन हिल पे कुछ ट्रीज़ के नीचे बैठ जाता है। उसके एक साइड पे बहुत दूर हडसन रिवर होता है और दूसरे साइड पे डीप डार्क वैली। डीप मीन्स बहुत गहरी, डार्क मतलब जहाँ बहुत अंधेरा हो, और वैली हम कहते हैं वादी को। अ पीस ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स। माउंटेन्स और हिल्स के बीच जो ज़मीन होती है उसे हम वैली कहते हैं। और वो वैली रॉक से भरी हुई थी, यानी वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े से पत्थर थे। रिप सन की तरफ देखता है और वुल्फ से कहता है कि अंधेरा होने वाला है, हमें घर चलना चाहिए। Just then, Rip heard a voice. Rip Van Winkle. Rip Van Winkle. He looked round. He could not see anyone. I must be dreaming, he thought. He began to walk towards his home. Then he heard the voice again. Rip Van Winkle. Wolf gave a low growl. He looked down into the valley. Rip looked too.
जैसे ही रिप अपने घर जाने के लिए उठता है, उसे कुछ आवाज़ आती है जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो सोचता है कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, और वो फिर से अपने घर की तरफ जाने लगता है और फिर दोबारा उसे कोई बुलाता है, रिप वैन विंकल। वुल्फ वो आवाज़ सुन के लो ग्रोल करता है। ग्रोल मीन्स गुस्से में आवाज़ निकालना, यानी ग़राना। वो वैली की तरफ देखता है और रिप भी वहीं देखता है। Okay students, now turn your page and open page number 16. He saw a man moving about in the middle of the rocks. Rip was surprised to see anyone there. Perhaps it's one of my neighbors. Perhaps he needs help, thought Rip. Come on, Wolf, he said. Let's go down and see. जब वुल्फ और रिप नीचे वैली में देखते हैं तो उन्हें एक आदमी नज़र आता है उन रॉक्स के बीच। रिप बहुत हैरान हो जाता है किसी को वहाँ देखकर, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद ये कोई मेरा नेबर है, शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। तो वो वुल्फ से कहता है कि चलो नीचे चल के देखते हैं। वुल्फ growled again. He and Rip did not know the man. The stranger was short and square looking. He had thick grey hair and a grey beard. His clothes were strange and old-fashioned. He wore blue trousers with buttons down the sides. His blue-grey coat had a thick belt around the middle. He was carrying a small wooden barrel. He waved to Rip. वुल्फ उस पर्सन को देख के फिर से ग्रोल करता है क्योंकि वो और रिप उस मैन को नहीं जानते। उस स्ट्रेंजर की हाइट बहुत शॉर्ट होती है और वो दिखने में बहुत ओल्ड टाइम्स का लग रहा होता है। उसके थिक ग्रे हेयर्स और ग्रे बियर्ड होती है। बियर्ड मीन्स दाढ़ी। उसके क्लोथ्स भी बहुत अजीब होते हैं और बिल्कुल ओल्ड फैशन होते हैं। उसने ब्लू ट्राउज़र्स पहने होते हैं जिसके साइड में कुछ बटन्स लगे होते हैं। उसके ब्लू ग्रे कोट के मिडिल में एक थिक बेल्ट होती है और उसने अपने हाथ में एक स्मॉल वुडन बैरल पकड़ा हुआ होता है। बैरल एक वुडन कंटेनर होता है सिलेंडर शेप का जिसमें वाटर या ऑयल रखा जाता है, और वो स्ट्रेंजर रिप को देख के वेव करता है। A game of 9 pins. He needs help, thought Rip. He walked up to the man and helped him carry the barrel. Together, they climbed up the hill along the dry bed of a stream. There was a noise like thunder a long way away. The noise came from another valley between dark rocks. Thunder, thought Rip. But the sky was blue and there was no rain. रिप सोचता है कि उस स्ट्रेंजर को उसकी मदद की ज़रूरत है, तो वो उसके पास जाता है और उसकी उस बैरल को उठाने में मदद करता है, और फिर वो दोनों एक खुश्क नदी के साथ साथ चलते हुए हिल के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो लोग ऊपर ही चढ़ रहे होते हैं कि रिप को अचानक थंडर की आवाज़ सुनाई देती है। थंडर मीन्स बादल का गरजना। वो नॉइज़ एक और वैली से आ रही होती है जो उन रॉक्स के बीच में होती है। रिप सोचता है कि स्काई भी ब्लू है और कोई बारिश भी नहीं हो रही, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। They climbed and climbed. At last they came to a small valley. There were high walls of rock all round it. Rip saw 9 or 10 men. All the men had beards, and they all wore strange old-fashioned clothes like the stranger. They were playing 9 pins with big wooden balls. The man took it in turns to roll a heavy ball towards a group of pins. The heavy ball made a noise like thunder. वो उस हिल को क्लाइंब करते रहते हैं और वो फाइनली एक स्मॉल वैली में पहुंच जाते हैं। उस वैली के हर तरफ हाई वॉल्स होती हैं रॉक से बनी हुई। रिप वहाँ कुछ 9 और 10 मैन को देखता है
उन सब की ही बियर्ड्स होती हैं और उन सब ने ही स्ट्रेंज और ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहने होते हैं उस स्ट्रेंजर की तरह। और वो 9 पिन्स खेल रहे होते हैं कुछ बिग वुडन बॉल से। सब अपनी अपनी बारी पे आते हैं और उस हैवी बॉल को रोल करते हैं उन 9 पिन्स की तरफ। और वो हैवी बॉल जब रोल होती है तो उसमें से थंडर की आवाज़ आती है। नाउ टर्न टू पेज 17। One of them looked more important than the others. He was a tall old man. He wore a tall hat with a big feather. He wore a blue coat and he had a sword in his belt. His socks were red and his shoes had big round red buttons like flowers. They looked like the people in the old picture on the inn wall, thought Trip. The picture showed a crowd of Dutchmen in old-fashioned clothes. उनमें से एक आदमी बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा होता है बाकी सबसे। वो टॉल होता है, उसने अपने सर पे हैट पहना होता है और उसके हैट पे एक बड़ा सा फेदर होता है। उसके ब्लू कोट की बेल्ट में एक स्वॉर्ड होती है और उसके सॉक्स रेड होते हैं। उसके शूज़ पर एक बिग रेड बटन होता है जैसे कि एक फ्लावर हो। रिप सोचता है कि ये लोग बिल्कुल उन लोगों की तरह दिखते हैं जो उसने इनकी वॉल पर लगी एक पुरानी पिक्चर में देखे थे। उस पिक्चर में डचमैन का एक क्राउड था जिन्होंने ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहने हुए थे। डच आर द पीपल हु लिव इन नेदरलैंड। नेदरलैंड में रहने वालों को हम डच कहते हैं। लाइक वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं हम उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, एंड जो इंडिया में रहते हैं हम उन्हें इंडियंस कहते हैं। सो द पीपल हु लिव इन द नेदरलैंड, जो नेदरलैंड में रहते हैं हम उन्हें डच कहते हैं। और वो रिप को बिल्कुल डच मैन की तरह लग रहे होते हैं जिसकी पिक्चर उसने इनकी वॉल पर देखी थी। Okay students, that's all for today. We will read the remaining chapter in the next lecture. Till then, you have to do your home task, which is do reading of Rip Van Winkle Part 2. That means कि आपको इस chapter की reading करनी है and then you have to make pictorial title page of Rip Van Winkle Part 2 in English Literature copy. और फिर आपको अपनी English Literature की कॉपी में रिप वैन विंकल पार्ट 2 का टाइटल पेज बनाना है। मेक श्योर कि टाइटल पेज बनाने से पहले आपका सारा प्रीवियस वर्क जो क्लास में करवाया गया है वो कंप्लीट हो। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।